Hello students, good morning students. Today is 21st January 2021. Your chapter 10 perimeter area and volume was going on. In the last class I have finished exercise 6 of chapter 10 and after that I have started mental maths question. In this I have taught to you question number 1 and 2. Today I will continue from question number 3. Question number 3 has been given. If L is equal to B is equal to H is equal to 5 centimeter, then वॉल्यूम इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स. इट मींस आपको लेंथ दे रहा है, L मींस लेंथ, B मींस ब्रेथ एंड H मींस हाइट एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. इट मींस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या इक्वल है एंड द मेजरमेंट ऑफ दैट साइड इज 5 सेंटीमीटर. इट मींस इट विल बी रिलेट फ्रॉम द क्यूब. अगर सभी की सारी साइड्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है सो दैट इज रिलेट फ्रॉम द क्यूब एंड इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द वॉल्यूम. Okay, so volume of cube you know about that, I already taught to you, that is related from the side into side into side. So here you will write that formula, volume is equal to side into side into side. Length first side हो जाएगी, breadth second side हो जाएगी, height क्या हो जाएगी, third side हो जाएगी. So size has been given 5, so 5 into 5 into 5, 5 से 5 में multiply करेंगे, then you will got 5 5s are 25. 25 into 5. Then 25 से आप 5 में multiply करेंगे, you will got 125. Look here how. In the rough column I will see. Look here. 25 into 5. 5 5s are 25. 25 पे 5 here. 2 will be carry forward. 5 2s are 10. 10 plus 2 12. It means 125 watt cubic centimeter, because volume you will find out in the cubic form. So here you will write cubic centimeter. Then after that you will write the answer. Answer volume is equal to 125 cubic centimeter. Clear students? Now students see the question number 5th. Question number 5th has been given. Perimeter of square is equal to 36 centimeter. Full stop. Its side is equal to filling the blanks, area is equal to filling the blanks. It means in this question perimeter has been given of a square and it has been asked about the side of that square and area of that square. Okay, so students you know about that formula of square. Perimeter of square is equal to 4 into side. Okay, so when you want to find out the side, so what formula you will applicable? Look here. Side of square is equal to perimeter of square divided by 4. ओके, जब आपको पेरीमीटर निकालना होता था स्क्वायर का, देन आप क्या करते थे, आपके साइड अगर स्क्वायर की दिया होता तो सब उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते थे. सो व्हेन द पेरीमीटर हैज बीन गिवन एंड यू वांट टू फाइंड आउट द साइड ऑफ दैट स्क्वायर, सो for that type of the length of the square you will find out. आप करेंगे क्या, 4 से पेरीमीटर में डिवाइड कर देंगे. so what is the perimeter has been given? 36 divided by 4. 4 की टेबल में आप पढ़िए 36 कितने टाइम आता है, 9 टाइम्स. so is equal to 9 watt centimeter, because unit has been given here. so 9 centimeter is the side of that square. Now this is the first part of this question, you have find out it. Then after that it has been asked about that area is equal to filling the blanks. It means it has been asked about the area also. Okay, so what is the area of square? Area of square is equal to side into side. Clear? So what the size you have find out it here, 9 centimeter. It means you will write 9 into 9. 9 nines are 81 watt. When you want to find out the area of a square or any rectangle, so answer you will write square. 81 square, unit has been given centimeter. It means that is the area. Now you will write the answer in a proper form. Side is equal to 9 centimeter and area is equal to 81 square centimeter. क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने साइड फाइंड आउट करी स्क्वायर की, देन आफ्टर दैट वी हैव फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर
and its breadth is equal to 4 centimeter. Its length is equal to filling the blanks. It means in this question area has been given of a rectangle and breadth has been given and it has been asked about that. Find the length of that specific rectangle. So here how can you find out it here? Look here. As you know students, what is the formula related from the area of rectangle? That is length into breadth. यानी अगर आपको एरिया निकालना हो रेक्टेंगल का तो आप कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे? लेंथ और ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो लेंथ हैज नॉट बीन गिवन हियर, ब्रेथ हैज बीन गिवन एंड एरिया हैज बीन गिवन. सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द लेंथ? You will follow that formula. Length of a rectangle is equal to area of rectangle, area of a rectangle divided by breadth of rectangle. यानी क्या, अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? जो आपका एरिया होगा रेक्टेंगल का आप उसमें ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे. वन थिंग मोर हियर, इफ इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी अगर आपसे ये कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है ब्रेथ क्या होगी रेक्टेंगल की, तो आप तब क्या करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से लेंथ को आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं. यानी क्या, अगर आपको लेंथ निकालनी हो रेक्टेंगल की, एरिया दिया हो तो ब्रेथ से डिवाइड करेंगे, ब्रेथ निकालनी हो एरिया दिया हो तो लेंथ से डिवाइड करेंगे. ओके, सो व्हाट इज द एरिया हैज बीन गिवन? दैट हैज बीन गिवन 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर मींस 20 अपॉन दैट इज द एरिया एंड व्हाट इज द ब्रेथ हैज बीन गिवन? दैट इज 4 centimeter. So 20 upon 4. So when you will divide 20 with 4, so it will be divisible by 4 5s are 20. It means 5. 5 what? What is the measurement unit here? You know about that. The measurement unit has been given here. Centimeter. So 5 centimeter. It means you have got the answer. Length of rectangle is equal to 5 centimeter. You will write the answer in a proper way. Length. Here it has been asked about length. So here you will write the answer. Length is equal to 5 centimeter. Clear students? Now students, I am started mixed bag. Okay, in the mixed bag question number 1 has been given here. Choose the correct answer. Okay, in this there are the 6 question has been given from A to F. I am started from A part. A part has been given. If length of a rectangle is increased by 2 centimeter, it means कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या 2 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. इट्स पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय, इसका पेरीमीटर बढ़ना चाहिए. ऑप्शन नंबर 1 हैज बीन गिवन 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 हैज बीन गिवन 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 हैज बीन गिवन 8 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 हैज बीन गिवन 6 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स, इट्स करेक्ट आंसर शुड बी सेकंड. सो हियर वी विल राइट आंसर सेकेंड 4 सेंटीमीटर. आपको बेटा सॉल्व करते समय सिर्फ आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्या करेक्ट आंसर है. यहां पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे. ओके, सो लुक हियर हाउ. आई थिंक एक हम ये इसको नोट नहीं करना है आपको, खाली आपको समझना है. लेट्स बी सपोज दैट लेंथ इज इक्वल टू, हमने मान लिया लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. हमने ये मान लिया कि लेंथ इसकी कितनी है, किसी रेक्टेंगल की 4 है और ब्रेथ क्या है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, सो 2 इंटू 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर आया. ठीक है, हम ये आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, इसको आपको लिखना नहीं कॉपी में, खाली समझने की कोशिश करें. दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, so on the basis of that example I will explain to you. क्या कह रहा है आपसे, लेंथ कितनी बढ़ जाए, इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर. हमने यहाँ लेंथ कितनी मानी थी 4, अगर ये 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी तो व्हाट विल बी द लेंथ, तब लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी. ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो हम ब्रेथ को एज इट इज रखेंगे, ब्रेथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना, समझने की कोशिश करिएगा. लेंथ 4 थी, ब्रेथ 2 थी, अब क्या हो गई लेंथ 6 हो गई, क्योंकि हमने एज पर द क्वेश्चन हमने 2 सेंटीमीटर लेंथ को इंक्रीज कर दिया, 6 हो गई. ब्रेथ कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगी. व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, सो फार्मूला सेम एप्लीकेबल होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 इंटू 6 प्लस 2 8, 8 2 16, 16 क्या
सेंटीमीटर। सो नाउ यू कैन सी, जब हमारी लेंथ क्या थी 4 सेंटीमीटर, तो हमारा पेरीमीटर कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब क्या है, हमारी लेंथ 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होकर के 4 से 6 हो गई। अब हमारा पेरीमीटर कितना है 16 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट कितना है 16 अभी है, पहले कितना था 12, तो कितना इंक्रीजमेंट हो, दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रीजन सेकंड आंसर इज योर करेक्ट आंसर। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, इसलिए हम इसको इरेज कर देना है। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट समझ आया होगा। हाउ कैन यू सॉल्व दैट क्वेश्चन? Students, see the B part of this question. B part has been given area of a square is equal to, it has been given 4 options. First 4 into side, second 2 into side, third side into side, and fourth side into side into side into side. Okay, so as you know students, I have already taught to you about the formula of area of a square, that is relates on the side into side. So your correct answer is answer number third, side into side. Clear students? Now students, see the D part. In the D part the question has been given, how many small cubes of side 2 centimeter can be put inside a cubical box of side 8 centimeter. It means एक cubical box है 8 सेंटीमीटर का, आप उसमें 2 सेंटीमीटर साइज के कितने क्यूब रख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स आपका एक बॉक्स बड़ा दिया है, दैट द शेप ऑफ दैट बॉक्स इज रिलेटेड फ्रॉम द क्यूबिकल बॉक्स, क्यूब के साइज का है, एंड साइड हैज बीन गिवन ऑफ दैट क्यूबिकल बॉक्स इज 8 सेंटीमीटर। आपको उसमें 2 सेंटीमीटर के बॉक्स पुट करने हैं, रखने हैं। सो ये पूछ रहा है आप कितने उसमें स्मॉल बॉक्सेस क्यूब के रख सकते हैं। ओके, हियर इट हैज बीन गिवन फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड हैज बीन गिवन 16, थर्ड हैज बीन गिवन 32, एंड फोर्थ हैज बीन गिवन 64. सो लुक हियर, हाउ कैन वी फाइंड आउट इट? फॉर दिस first you will find out the volume of cubical box. So here we will write about that. Side has been given, side of cubical box is equal to 8 centimeter. Cubical है, it means all the sides will be remain same, सारी sides क्या होंगी equal होंगी. So volume of cubical box is equal to side into side into side. ओके, इसका सॉल्यूशन करना नेसेसरी है, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर। सो लुक हियर, साइड हैज बीन गिवन 8 सेंटीमीटर, 8 into 8 into 8, 8 8 जा 64. ओके, 64 into 8, 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32, 32 का 2 हियर, 3 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51. इट मींस 512 cubic centimeter. That is related from the volume of that cubical box. Now the small cubes की साइज कितनी दे रहा है आपको? साइड दे रहा है 2 सेंटीमीटर. So first we will find out the volume of that small cube. So here we will write side of small cubes is equal to 2 centimeter. Okay, therefore small cube लिखें, therefore volume of each small cube, सेम फॉर्मूला, साइड इंटू साइड लगाएंगे आप. सो इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 वॉट क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, इट मीन्स you have find out the volume of that cubical box, then after that you have find out the volume of that small each cube. Okay, now it has been asked about the how many cubical box, small cubical box put inside a cubical box. So here we will write, therefore we can put inside, we can put small cubes, we can put small cubes in cubicle box is equal to volume of the total cubicle box has been given 512 and small cube की volume कितना है 8. So here we will divide 512 divided by 8. So आप 8 से 512 में divide करेंगे. So look here, how can we divide? In this side I will divide. 8 से हम 512 में divide करें. 8 6 48. Remaining number is 3. Then 2 note down करेंगे. 8 4 32. It means we have got 64. So after division we have got 64. That 64 you will write it here 64.
and that is the number of small cubes. Here you will write cubes. So that is your answer, and you can see the answer. There are the four options, 1, 2, 3, 4. We have find out that fourth option is correct. It means you will write the answer. Answer is equal to 464. ओके, फोर्थ ऑप्शन है और 64 हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स हैं. सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. हाउ कैन वी सॉल्व इट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी विद मी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी ई पार्ट. In the E part of this question, it has been given the area of a square is equal to the area of a rectangle. Okay, of length is equal to 16 centimeter, breadth is equal to 1 centimeter. The side of the square is, options has been given. There are the four options. First, understand about the question. आपसे ये कह रहा है एक स्क्वायर है जिसका एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, इक्वलेंट है. एक स्क्वायर का एरिया है रेक्टेंगल के एरिया के इक्वलेंट है, इक्वल है. एंड द लेंथ हैज बीन गिवन ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हैज बीन गिवन 1 सेंटीमीटर एंड इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द साइड ऑफ दैट स्क्वायर. ओके, so look here, there are the four options: 8 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter and 2 centimeter has been given. So you will check about that which option is correct. So look here, how can we solve? First, आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रहा है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. दैट इज द फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द लेंथ हैज बीन गिवन हियर? 16 सेंटीमीटर लेंथ दी है आपको, ब्रेथ कितनी दे रहा है? 1 सेंटीमीटर. 16 बन जा 16 वॉट. एरिया यू विल फाइंड आउट इन स्क्वायर. सो स्क्वायर सेंटीमीटर. इट मींस द एरिया ऑफ दैट rectangle is 16 square centimeter, and it has been already told you in your question, area of square is equivalent to the area of the rectangle. It means therefore area of square क्या होगा? Area of square is equal to also 16 square centimeter, because जो आपका रेक्टेंगल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया के क्या है? इक्विवेलेंट है. सो हमारा रेक्टेंगल का एरिया मिला कितना? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इट विल बी आल्सो इक्वल इन द कंपैरिजन ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर. सो दैट विल बी आल्सो रिलेटेड फ्रॉम द 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, नाउ लुक हियर, हाउ कैन वी फाइंड आउट द साइड? देयर इज द सम डिफरेंट थिंग. लुक हियर केयरफुली. देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप करेंगे क्या? 16 को आप फैक्टर्स निकालेंगे. 16 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे. फैक्टराइजेशन देखिए, याद करिएगा, हम पढ़ा चुके हैं आपको प्रीवियस की क्लासेस में. हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हाउ कैन यू फाइंड आउट द. सो वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स. सो लुक हियर, हाउ कैन यू फाइंड आउट द फैक्टर्स इन रफ फॉर्म. व्हाट इज द इस एरिया यू हैव फाइंड 16. सो हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. 16 किससे डिवाइड होगा? फर्स्टली 2 से. 2 8 जा 16. नाउ 8 किससे डिवाइड होगा? 2 से. 2 4 जा 8. देन 4 2 से. 2 2 जा देन 2 1 जा. इट मींस वी हैव फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 16. द फैक्टर्स इज 2 into 2 into 2 into 2. लिसन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है. ये आपको एक्सरसाइज में अभी तक नहीं मिला है क्वेश्चन इस तरह का. हमने इसलिए इसको जो आपके मिक्स्ड बैग में क्वेश्चन दिया इसको हम करा रहे हैं. ध्यान से समझिएगा कैसे करना है. जब आपको एरिया देता है स्क्वायर का और आपको साइड निकालनी होती है, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, देन इनके पेयर बनाएंगे. पेयर मींस यू नो अबाउट दैट. पेयर में कितने पीसेस होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेयर सॉक्स लेने जाएं, एक पेयर शूज लेने जाएं, तो आपको 2 शूज मिलेंगे. ठीक है, अगर सॉक्स लेंगे 2 सॉक्स मिलेंगे, एक आपका लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का. सो एट दैट टाइम दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. आप क्या करेंगे? पेयर. पेयर क्या हो गया? 2 into 2. एक पेयर बन गया और अदर पेयर क्या बन गया? 2 into 2. अब एक एक पेयर में से एक एक नंबर आप नोट डाउन कर लेंगे. इन दो में से एक नंबर हम नोट करेंगे, 2 आएगा, कॉमन ले लेंगे. देन इन दो में से एक नंबर लेंगे, 2 आएगा. अब आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4. 4 वॉट? यूनिट आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है, दैट इज सेंटीमीटर. सो हियर वी विल राइट सेंटीमीटर. नाउ दिस इज योर आंसर. यू कैन चेक द आंसर. व्हाट इज द ऑप्शन इज करेक्ट? सेकंड ऑप्शन आई फाइंड आउट, दैट इज द करेक्ट आंसर. सो हियर वी विल राइट आंसर सेकंड 4 सेंटीमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा हमने कैसे सॉल्व किया ऐसे. फर्स्ट
एरिया निकाला रेक्टेंगल का, क्यों निकाला? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ स्क्वायर के। ओके, सो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हैज बीन गिवन 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हैज बीन गिवन 1 सेंटीमीटर। सो 16 इनटू 1 इज इक्वल टू क्या आया? 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। इट मींस अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर भी कितना होगा? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमने यहां क्या लिखा? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए जो आपका एरिया आया है स्क्वायर का, आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स हमने आपको पिछले चैप्टर्स था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हमने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है। ओके, फैक्टर्स निकालने क्या करेंगे? 16 है, स्मॉलेस्ट डिजिट से जाना चाहिए, 2 से जाएगा। इसमें हमें स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर लेना है, सो 2 से जाएगा। 2 8 जा 16, देन 8 भी हम स्मॉल लेंगे, 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा। सो वी हैव गॉट द फैक्टर्स ऑफ 16, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2. Clear? Now we have find out the common factors. Now we have find out the common factors means 2 into 2. पेयर बना के कॉमन लेंगे, सो यहाँ पेयर में हमने एक कॉमन फैक्टर लिया, 2 into 2 एक पेयर हो गया। अनदर पेयर इज रिलेटेड फ्रॉम द 2 into 2. सो इन दोनों में से हम एक कॉमन उतारेंगे, देन अनदर पेयर में से एक कॉमन उतारेंगे। क्या बचा आपका? 2 into 2, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। इट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, देन यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके।